लाइट के कारण अगर मुश्किल होती है तो लाइट बंद कर। So the topic that we are taking up today, that is computation of weighted average cost of capital. अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए, जो भी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स। एक सोर्स की फर्म को क्या कॉस्ट आती है? कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर क्या है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है। As the name suggests, weighted average cost of capital means we are referring to the altogether overall cost of capital हमें कितनी आ रही है, जितने भी आप sources of funds use कर रहे हैं, because कोई भी firm एक single source नहीं use करती। अगर आप कहो कि एक firm सिर्फ debt use करती है, तो ऐसा नहीं है। एक firm सिर्फ equity share use करेगी, ऐसा नहीं है। They are using a variety of sources. They are using various sources. So in order to calculate the average cost of all the sources of finance, the method that is used, that is your computation of weighted average cost of capital. हमने अब इसमें चलना कैसे है? What are the steps that are involved? पहले हम individual sources का कॉस्ट ढूंढेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल क्या है। कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी वो कैलकुलेटेड गिवन भी होगा, एज इट इज आपको गिवन होगा वहां पे कि आपकी इक्विटी की कॉस्ट इतनी है, डेट की कॉस्ट इतनी है, दैट कुड बी गिवन। बट इफ आई वाज द इन्विजिलेटर एंड आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स, आई वुड पुट इन अ क्वेश्चन wherein I would want you to calculate first for each source and then the overall cost. क्योंकि अगर मैंने सब कुछ ही आपको बनाया दे दिया तो एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ढूंढना वो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो इजीली कैलकुलेट हो जाती है। तो अगर आपको याद होगा हम किसी पहले भी सब्जेक्ट में हम करते थे ना, वेट्स असाइन करके 1 2 3 4 ऐसे वेट्स असाइन करके करते थे। यहाँ पे हम वेट्स किसके बेसिस पे देते हैं? आइदर ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू और ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, कि इन स्पेसिफिक सोर्स की हमारी बुक्स में कितनी वैल्यू है या उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उस प्रोपोर्शन में हम उनको वेट्स असाइन करते हैं। They say that if there is a difference between market and book value weights, the weighted average cost of capital would also suffer. अगर आपका book value different है, market values different है, तो जो आपकी weighted average cost of capital है, वो भी दोनों cases में अलग आएगी, वो same नहीं आएगी। The market value weights are sometimes preferred over book value weights because market value represents true value to the investors. क्योंकि आज की डेट में जो वैल्यू है, कंसर्न तो मेन वही है, दूसरा तो कंसर्न है ही नहीं है। बुक्स में तो जो मर्जी कॉस्ट दिखे, तो जो इन्वेस्टर्स है वो क्या प्रेफर करते हैं? दे प्रेफर योर बुक मार्केट वैल्यू वेट्स इन कंपैरिजन टू योर बुक वैल्यू वेट्स। अब जब हम इसके अंडर भी कैलकुलेट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन द फर्स्ट प्लेस weighted average cost of capital, overall cost of capital, they are one and the same thing. पेपर में अगर क्वेश्चन में overall cost of capital पूछ लिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, that is one and the same thing. So it is denoted by KW. W क्या है? weighted average cost of capital. So K subscript W is equal to sigma XW divided by sigma W. X क्या है? कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। W क्या है? वेट या प्रोपोर्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। यहां तक कोई डाउट? A firm has the following capital structure and after tax cost for the different sources of funds used. Debt amount is 1,50,000.
50,000. Proportion is 25%. After tax cost is 5%. Preference shares 1,20,000. Proportion 20%. After tax cost 10%. Equity shares 1,80,000. Proportion 30%. After tax cost 12%. Retained earnings amount 1,50,000. Proportion 25%. After tax cost is 11%. Let's suppose in this question you were only given amount and after tax cost. अगर ये weights ये proportion हमें खुद ढूंढनी पड़ती तो हम कैसे ढूंढते? 1,50,000 divided by 6 lakh into 100, that will give you 25%. 1,20,000 divided by 6 lakh into 100, that will give you 20%. 180 divided by 6 into 100, 30%. 1,50,000 divided by 6 lakh into 100, that will give you 25%. क्या है ये proportion? क्या है ये weights? This is the proportion of that specific source from the total sources of finance that you are using. Clear है question? Solution पे चले. So हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोपोर्शन हमें गिवन है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट हमें गिवन है. फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू. एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू गिवन है, एक्स भी क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर लिया. 25 into 5 125, 20 into 10 200, 30 into 12 360, 25 into 11 275. टोटल कर लिया. टोटल कितना आ गया? 960. सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा इज टोटल ओनली. ऐड करके कितना आ रहा है? तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू है कितना हो गया? 960 डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू. डब्ल्यू कितना है? 100. 960 by 100, that comes out to be 9.6%. Clear? Any doubts? The students who are online, any doubts? No, ma'am. Now we are continuing with the previous question. Now what it says, if the firm has 18,000 equity shares of 100 each and the current market price per share is ₹300, calculate market value weighted average cost of capital, assuming that the market value and book value of debt and preference capital are the same. अब उन्होंने क्या बोला है कि आप कैलकुलेट करो मार्केट वैल्यू के हिसाब से. मार्केट वैल्यू क्या है? 18,000 इक्विटी शेयर है, वैसे 100 रुपए का शेयर है, बट मार्केट वैल्यू कितनी है? 300. और जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू डेट और प्रेफरेंस कैपिटल की है वो है सेम. रिटेन्ड अर्निंग्स बीच में से हटा देना. रिटेन्ड अर्निंग्स अब है ही. डेट और प्रेफरेंस कैपिटल सेम आ गई. 1,50,000 1,20,000. इक्विटी शेयर्स अब कितने हो गए? 18,000 शेयर, 300 रुपए का शेयर. 18,000 into 300, that gives you 5,40,000. तो अब मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया? 8,10,000. अब 8,10,000 में से मैं वेट्स देखूंगी, प्रोपोर्शन निकालूंगी. कैसे? 1,50,000 divided by 8,10,000, that will give you 18.5%. 1,20,000 divided by 8,10,000 into 100, that will give you 14.81. 5,40,000 divided by 8,10,000 into 100, that is going to give you 66.67%. Cost पिछली वाली कंटिन्यू कर ली. 5, 10, 12. सिग्मा एक्स डब्ल्यू निकालना है तो क्या करूंगी? प्रोपोर्शंस और वेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया. 18.52 into 5, 14.81 into 10, 66.67 into 12. सिग्मा एक्स डब्ल्यू कितना आ गया? 1040.74. कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे? सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू.
1040.74 divided by 100, that will give you 10.41%. क्या अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों नहीं कर रहे हैं बाकी क्वेश्चंस के जैसे, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी परसेंटेजेस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. We are already taking into consideration the percentage. Clear? Any doubts? The students who are online, any doubts? No, ma'am. Now this is the question which if I take your exam, I am going to put it. The following is the capital. भेजी हुई है PPT. कल सारी PPT आ गई है. The following is the capital structure of the company. Equity shares at 100 each, book value 80,000, 8 lakh, market value 16 lakh. 9% cumulative preference share, book value 2 lakh, market value 2 lakh 40,000. 11% debentures 6 lakh and 6 lakh 60,000. Retained earnings की सिर्फ book value होती है, उनकी कोई market value होती नहीं है क्योंकि वो market में बिकते नहीं है. Retained earnings is something that you are retaining with yourself. So ये market में बिकती नहीं है, तो इसलिए इसकी कोई market value नहीं होती. The current market price of company's equity share is 200. For the last year, the company had paid equity dividend at 25%, and its dividend is likely to grow by 5%. The corporate tax rate is 30%, and shareholders' personal income tax rate is 20%. Calculate cost of capital for each source of finance. Weighted average cost of capital on the basis of book value weight. Weighted average cost of capital on the basis of market value. अब इसमें हम पहले क्या करेंगे? पहले we'll find out cost of equity capital. Secondly, we'll find out cost of preference capital. Third would be your cost of debentures. Fourth will be the cost of retained earnings. Corporate tax rate जो given है ये आपका use होगा for the purpose of calculation of cost of debentures. जो personal income tax rate है that is going to be used for your retained earnings. जो 1 minus T 1 minus B वाला formula है ना, क्योंकि वो income tax क्या है कि अगर वो retained earnings dividend की तरह shareholders को मिलती तो उनको उसके ऊपर tax pay करना पड़ता, तो इसलिए वहां पे use होगा. Coming to the cost of equity capital, dividend को pay कर रहे हैं at 25% and the dividend is expected to grow by 5%. 100 रुपए का किया 25 तो कितना हो गया डिविडेंड पुराना आपका 25. फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? डिविडेंड प्लस ग्रोथ यील्ड वाला. K yield is equal to D1 divided by market price plus growth rate. पुराना डिविडेंड है, नया डिविडेंड हमें ढूंढना पड़ेगा. नया डिविडेंड ढूंढने का क्या फॉर्मूला है? D0 into 1 plus G. पुराना डिविडेंड 25, ग्रोथ रेट इज 5%, 5 by 100 तो कितना हो गया? 0.05. 25 multiplied by 1.05 that will give you 26.25. D1 आ गया 26.25. मार्केट प्राइस ऑलरेडी 200 हमें गिवन है, तो D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100 तो ये कितना आ जाएगा? 13.125%. ग्रोथ रेट 5% ऑलरेडी गिवन है, तो 13.125 प्लस 5% वो आपका आ जाएगा 18.125%. क्लियर है यहाँ तक? इसकी कैलकुलेशन में कोई डाउट हो? The students who are online, any doubts with this? No, ma'am. Okay.
coming to cost of preference capital. 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 100 रुपए का है. क्या फॉर्मूला है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड. 9 डिवाइडेड बाय 100 into 100, कॉस्ट आ गई 9%. कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे, आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 6 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं, बुक वैल्यू. इंटरेस्ट कितना है? 11%. 6 लाख का 11% कितना हो गया? 66,000. That means 66,000 divided by 6 lakh into 1 minus 0.3. 0.3 कैसे आया? 30 divided by 100. 30% है ना? 30 divided by 100, that is 0.3. So पूरा इसको मल्टीप्लाई करके 100 से आपकी कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी 7.7%. कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू 1 माइनस टैक्स रेट इनटू 1 माइनस ब्रोकरेज कॉस्ट. ब्रोकरेज कॉस्ट कोई गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो वो हो गया 0. 1 माइनस 0. पर्सनल इनकम टैक्स रेट गिवन है 20%. 20 by 100, that is 0.2. 18.125 ये हमने पहले कैलकुलेट किया, सबसे पहले हमने यही कैलकुलेट किया. 18.125 into 1 minus 0.2, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएंगी 14.5%. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? I am leaving this until here only because I have a duty where I need to report to, otherwise I could have taken. अभी लेक्चर आपका 9:45 पे है ना? थोड़ा सा पढ़ लो फिर. थोड़ा सा. बुक वैल्यू वाला मैं करवा रही हूँ, मार्केट वैल्यू वाला खुद से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? अब फिर से वो टेबल पे आ जाएंगे. This is on the basis of book value weight. Amount given थी हमें, weights calculate कर लिए. 8 lakh divided by 20 lakh into 100. 2 lakh divided by 20 lakh into 100. 6 lakh divided by 20 lakh into 100. 4 lakh divided by 20 lakh into 100. मैंने weights calculate कर लिए. weights cost पहले calculate कर ली है, दोनों को आपस में multiply कर दिया. मल्टीप्लाई करके टोटल कितना आया? 1336. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे? सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू. 1336 डिवाइडेड बाय 100, दैट वुड बी 13.36%. क्लियर? ये मार्केट वैल्यू का भी सॉल्यूशन देख लो. मार्केट वैल्यू वाले में रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं आएंगी, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है. तो अब जो हम अमाउंट लेंगे, हम लेंगे जो मार्केट वैल्यू वाले कॉलम वाली अमाउंट थी. 2 कॉलम्स थे ना क्वेश्चन में, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू वाली अमाउंट लेंगे, उसके हिसाब से वेट्स कैलकुलेट करेंगे. कॉस्ट विल रिमेन द सेम. बाकी सेम प्रोसेस, वेट को और कॉस्ट को आपस में मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके उसका टोटल करके डिवाइड बाय 100 आपके पास आ जाएगी weighted average cost of capital on the basis of market value. Clear? कोई doubts किसी को? The students who are online with me, any doubts? No, ma'am. All right then, students, this is it for today. Have a good day.